Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to MCQ discussion and topic for this lecture is structure of atom. Before we start, make sure you subscribe to the channel so that you can get notifications for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly, right? So in the previous lecture, we have taken up Bohr's model and various successes of Bohr's model, like how to find out the radius of an orbit, what is the energy of electron in an orbit, velocity with which electron is revolving in the fixed path, and angular momentum calculation. And all this was done with the help of hydrogen spectrum, and Rydberg relation we have taken up in hydrogen spectrum, and the failure of Bohr model also you have seen in the previous lecture. But the failure is due to dual nature of matter, due to Heisenberg's uncertainty principle. So by considering the dual nature, I mean to say the particle as well as the wave nature, the concept of fixed path, that is called orbit, was totally discarded, and we have to talk in terms of probability, not in terms of certainty. So all these concepts we will be revising through these slides. Let's start. First of all, dual nature of electron. We'll see what is the meaning of the term dual nature. It's written here that Einstein has suggested that light has wave as well as particle character. लाइट के अंदर वेव करेक्टर भी है और पार्टिकल करेक्टर भी है, इसको हम ड्यूल नेचर बोलते हैं. जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, they prove the particle character, they prove the particle nature. We will be taking up in detail what is the meaning of photoelectric effect, what is the meaning of black body radiation. Whereas the concept of diffraction and interference, they prove the wave nature. You know, waves are undergoing interference. Interference means overlapping of waves, and even diffraction we have taken up in wave, right? तो ये दोनों properties हैं लाइट के पास, particle nature भी और wave nature भी. देन ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के लिए साइंटिस्ट का नाम है लुइस डी ब्रॉगली. डी ब्रॉगली हैज सजेस्टेड दैट ऑल मूविंग पार्टिकल्स दे हैव ड्यूल नेचर एज लाइट हैज द ड्यूल नेचर, राइट. तो मूविंग पार्टिकल्स के पास वेव करेक्टर भी है और साथ साथ में पार्टिकल करेक्टर भी है. दिस वॉज सजेस्टेड बाय डी ब्रॉगली, और डी ब्रॉगली ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी दिया विच इज कॉल्ड एज मैटर वेव इक्वेशन. लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. वी कैन राइट लैम्डा वेव का प्रॉपर्टी है और मास तो पार्टिकल का होता है. सो लैम्डा की जगह पे आप लिख सकते हो वेव करेक्टर, एंड मास मीन्स पार्टिकल करेक्टर. तो कोई पार्टिकल अगर मूविंग है, उसका मास m है, तो उसके साथ कोई ना कोई वेव एसोसिएटेड होती है. दैट वेव विल हैव सम पर्टिकुलर वेवलेंथ कॉल्ड एज लैम्डा. तो वो लैम्डा को हम एक्सप्रेस करते हैं कभी नैनोमीटर्स में, कभी पिकोमीटर में या एंगस्ट्रॉन के अंदर. तो हमारे पास ये रिलेशन कैसे आया? डी ब्रॉगली ने दो कॉन्सेप्ट्स यूज किए. एक तो आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट E इज इक्वल टू h न्यू, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अंडर हम पढ़ते हैं. दोनों को इक्वेट करेंगे. E इज इक्वल टू h न्यू को हम चेंज कर देते हैं E इज इक्वल टू h c बाय लैम्डा. यू आर अवेयर ऑफ द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी विच इज न्यू इज इक्वल टू c इंटू लैम्डा. सो न्यू c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. तो आप इसको चेंज करके ये बन जाएगा न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा. तो हमारा एक्सप्रेशन एनर्जी का भी चेंज हुआ. अब दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो. इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेट कर देते हैं तो ये बन जाएगा mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. गॉट इट? बाय कंबाइनिंग द टू इक्वेशंस वी कैन राइट mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा. तो कैंसल द कॉमन टर्म, c एंड c विल बी कैंसल्ड. ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, वेयर c इज द velocity of light. velocity of light है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. अब यही कॉन्सेप्ट अगर हम मटेरियल पार्टिकल के ऊपर लगाते हैं
तो लेट्स से द पार्टिकल इज हैविंग मास, particle of mass small m moving with velocity v, तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, ये बन जाता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि डी ब्रॉगली ने डिराइव करके दिया। लैम्डा वेव करेक्टर है मास पार्टिकल का, पार्टिकल करेक्टर वेलोसिटी भी पार्टिकल की, और मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। तो हम एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। गॉट इट? हायर इज द मोमेंटम, लेसर विल बी द वेवलेंथ। वी कैन मेंशन हेयर, अगर पार्टिकल हैवी है तो उसका मास ज्यादा होगा, मोर मास मीन्स लेस वेवलेंथ। सिमिलरली लाइटर पार्टिकल्स, we can mention that lighter particles have more wavelength, or you can say they have more wave character. तो in our routine life this principle is not having much importance, क्योंकि routine life में हमारे को मैक्रोस्कोपिक particles दिखते हैं, जैसे कि ball is moving और car is moving, तो उनका मास है बहुत ही हाई। बट अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या कोई अल्फा पार्टिकल, दीज आर दी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। Microscopic particles have very very less mass, so if their mass is less, then the wave associated with them will not be ignorable, it will have a higher value of wavelength. As a result, आप इलेक्ट्रॉन के लिए ये कॉन्सेप्ट इग्नोर नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और इलेक्ट्रॉन के पास वेव करेक्टर भी है। So microscopic particles like electron, proton, neutron or alpha particle, they have wave of high wavelength. They have a wave of high magnitude of wavelength which cannot be ignored. तो अब आप इसको लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी लिखते हो। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का फिर फिक्स्ड पाथ नहीं हो सकता अगर इलेक्ट्रॉन के पास वेव करेक्टर भी है। पार्टिकल और वेव में यही तो डिफरेंस है, पार्टिकल का पोजीशन फिक्स्ड है, वेव फिक्स नहीं होती। वेव इज डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड मीन्स स्प्रेड ऑल अराउंड, बट द पार्टिकल इज लोकलाइज्ड। पार्टिकल्स के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, एक पार्टिकल के ऊपर दूसरा पार्टिकल नहीं आएगा, बट वेव्स के अंदर इंटरफेरेंस होता है। सो कहने का मतलब फिक्स्ड पाथ विल बी फॉलोड बाय पार्टिकल बट नॉट बाय वेव। वेव विल हैव, जैसे कि आप पॉन्ड के अंदर कुछ स्टोन फेंकते हो तो रिपल्स आते हैं, रिपल्स आपको दिखते हैं, आप कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं बता सकते कि यहाँ पे रिपल्स खत्म हो रहे हैं, यहाँ से रिपल्स स्टार्ट हो रहे हैं। सो दे आर ऑल अराउंड स्प्रेड, दे आर डीलोकलाइज्ड। गॉट इट? तो वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है अगर, तो फिक्स्ड पाथ कैन नॉट बी देयर। कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड पाथ, जिसको कि बोहर ने ऑर्बिट बोला था, दैट विल बी discarded, is not valid, right? तो हमारे पास ड्यूल नेचर कंसिडर करते ही बोहर मॉडल फेल होता है। उसके बाद देखते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी के बाद ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में लिखना है, वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी, हाउ आर दे रिलेटेड? वी कैन मेंशन हेयर रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको वेलोसिटी नहीं दिया, काइनेटिक एनर्जी दिया होगा, तो आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है? लैम्डा इज एच अपॉन एम वी, कैन इट बी रिटन एज दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर? वी कैन मेंशन 2 into काइनेटिक एनर्जी इज एम वी स्क्वायर। Let's multiply both sides by mass. 2m into E is equal to m square v square. Can I get the value of mass into velocity from here, which is equal to root of 2m into ek? Let's substitute here. Lambda is equal to h upon mv. इसके अंदर हम अब mv का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा h upon under root 2m ek, where ek is the kinetic energy. I mean to say we have to learn the relation of wavelength in terms of velocity as well as in terms of kinetic energy of the particle. So यहाँ पे हमें दोनों relations दिखा रखे हैं। We are given wavelength with momentum, wavelength with kinetic energy, but one more relation which is equal to h upon under root 2m e into v. What is this?
let's consider that an electron is moving, electron is accelerated through a potential difference V. Electron accelerated through potential difference V, then its energy will be equal to, potential energy will become charge into potential difference. Charge electron के ऊपर E है, potential difference is V, and kinetic energy ultimately becomes equal to potential energy. Therefore आप relation को ऐसा भी लिख सकते हो, हमारा relation था 2 अंडर रूट के अंदर था 2m into kinetic energy. It can be written as h upon root 2m e into v. Potential energy के लिए हमने लिख दिया charge on electron and voltage V. Got it? So both the relations are required. Many times you will be given kinetic energy, many times you will be given voltage, and you will be asked to calculate the wavelength, right? Let's come to the question. Question is, two particles A and B are in motion. If the wavelength associated with particle A is 5 into 10 raised to power minus 8 meters, calculate the wavelength associated with B if momentum is half of A. So what is the condition given to us? Now we are starting this solution for the question. We are given that lambda is to be calculated, 1 lambda is given, एक lambda की value है 5 into 10 raised to power minus 8. This is for particle A. For particle B we have to calculate, and momentum of B is half of momentum of A. As a result हमारा जो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट का एक्सप्रेशन है, लैम्डा A अपॉन लैम्डा B, दो पार्टिकल्स के लिए हम रेशो लेंगे, ये बनेगा मोमेंटम ऑफ B अपॉन मोमेंटम ऑफ A. नाउ मोमेंटम ऑफ B तो हमें दे रखा है हाफ ऑफ A, PB is equal to PA upon 2, and PA will be cancelled. This value is 5 into 10 raised to power minus 8. Can I calculate the momentum of B particle? PA is cancelled, so lambda B comes out to be 10 into 10 raised to power minus 8, मतलब 10 raised to power minus 7. So what were the units given in the question? Meter was given, तो आंसर मीटर में ही आएगा. It was given in meters. Look at the solution again. You are given a condition that momentum of B is half of momentum of A, and wavelength of one particle was given, wavelength of second particle was given, second was to be calculated, and after cross multiplying you get this value. So जब आप एक्सरसाइज करोगे तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए भी मिलेंगे और पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में भी मिलेंगे. वेवलेंथ इज टू बी कैलकुलेटेड इन दिस मैनर. कमिंग टू द नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट स्लाइड, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल हमें क्या बताता है? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो ऑल द टाइम न्यूक्लियस के राउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम पता नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ उसमें एरर रहेगा. Let's say delta x is the uncertainty in finding out the position, or you can say it is the error in finding out position, and delta p is uncertainty in finding out the momentum. तो जब आप डेल्टा x मेजर करोगे उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा, जब आप डेल्टा p मेजर करोगे तब भी एरर आएगा. डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा p इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. h अपॉन 4 पाई इज ए कांस्टेंट वैल्यू, तो दोनों के अंदर जितना भी एरर आता है मेजरमेंट में उसका प्रोडक्ट जो है दैट इज बिगर देन अ कांस्टेंट वैल्यू विच इज h अपॉन 4 पाई. एंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कभी डेल्टा x जीरो हो जाए, डेल्टा x जीरो मतलब देयर इज नो अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग आउट द पोजीशन. आई मीन टू से कि हमें पोजीशन ठीक से पता है, एग्जैक्टली पता है आपको पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा p विल बिकम इन्फिनिटी बिकॉज आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा. फिर डेल्टा p विल कम आउट टू बी h अपॉन 4 पाई डेल्टा x, और डेल्टा x हम बोल रहे हैं जीरो है, तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया इट विल बिकम इन्फिनिटी. सिमिलरली इन द सेकेंड केस अगर हम ये कंडीशन लगा दें, पहले लगाई थी डेल्टा x इज जीरो, अगर डेल्टा p जीरो हो जाएगा
then delta x will be equal to h upon 4 pi into delta p. Again delta x will come out to be infinity. मतलब अगर आपको पोजीशन ठीक से पता है तो मोमेंटम में बहुत बड़ा एरर आएगा, अगर मोमेंटम ठीक से पता है तो पोजीशन में बहुत बड़ा एरर आएगा. कुछ ना कुछ एरर दोनों में होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी. Now it is said that this law is insignificant for macro objects like ball, cycle, because their velocity and position can be known with certainty. कहने का मतलब ये जो लॉ है ये हमारी रूटीन लाइफ में इतना वैलिड नहीं है, क्योंकि रूटीन में तो हमें मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दिखते हैं, जैसे कि बॉल मूविंग है, मूविंग बॉल या साइकिल है, कार है, तो उनका हाई मास होता है, उनका हाई मास है. एज अ रिजल्ट आप उनका पोजीशन एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, आप उनका वेलोसिटी भी मेजर कर सकते हो, तो उनमें एरर नहीं है. बट जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करो, इलेक्ट्रॉन आपको दिखता भी नहीं है नेकेड आई से. यू हैव टू यूज अ माइक्रोस्कोप टू सी द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो माइक्रोस्कोप की लाइट को लेके वो इलेक्ट्रॉन एक्सरलेट हो जाता है, उसकी वेलोसिटी बदल जाती है. तो पहले पोजीशन पता नहीं था क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा था. जब आप माइक्रोस्कोप यूज करते हो तो उसकी वेलोसिटी बदल जाती है, वेलोसिटी चेंज हुई तो मोमेंटम चेंज हो जाता है. तो कुछ ना कुछ एरर आएगा. कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन की ये प्रॉपर्टीज है कि उसकी पोजीशन फिक्स्ड तरीके से पता ही नहीं चल सकती, तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट फेल होता है कि फिक्स्ड पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है. ये रॉन्ग एजम्पशन है, राइट. On question is, on the basis of Heisenberg's principle, show that an electron cannot exist in the nucleus and radius of nucleus is also given to us. हमें ये प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता. क्या करेंगे? लेट्स assume that electron is present inside the nucleus first of all. तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है? 10 raised to power minus 15 मीटर, राइट. सो अगर रेडियस का ये वैल्यू है, इट मीन्स मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो सकती है दैट विल बी इक्वल टू 10 raised to power minus 15. अब हम डेल्टा वी फाइंड आउट कर लेंगे. डेल्टा एक्स हमें पता है, तो हाइजेनबर्ग्स इक्वेशन डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, राइट. तो वाइल कैलकुलेटिंग हम ये पुट करेंगे 10 raised to power minus 15. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है 9.1 इंटू 10 raised to power minus 31, एंड डेल्टा वी वी कैन फाइंड आउट, इट विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू. प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है 6.626 इंटू 10 raised to power minus 34 डिवाइडेड बाय 4 पाई. पाई इज 3.14. गॉट इट. तो ये जो डेल्टा वी आएगा इट विल कम आउट टू बी आफ्टर कैलकुलेशन, ये आता है 5.77 इंटू 10 raised to power 10 मीटर पर सेकेंड. गॉट इट. तो ये हमने डेल्टा वी कैलकुलेट किया, बट आप एक्चुअली इस वैल्यू को देखो, इट इज मच मोर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट. वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू है 3 इंटू 10 raised to power 8, और ये वैल्यू आ रही है 10 raised to power 10 में. आई मीन टू से 100 times बिगर वैल्यू. इट मीन्स दैट दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. अगर इलेक्ट्रॉन अंदर प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन का फिर वेलोसिटी ये बन जाएगा 5.7 इंटू 10 raised to power 10, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. लाइट की वेलोसिटी से भी ज़्यादा वेलोसिटी आ रही है ये. हेंस वी कैन से दैट electron cannot exist in the nucleus, because if it happens then electron have to revolve with the velocity which is even bigger than the velocity of light, right. तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं, एक बोहर्स मॉडल को फेल करने के लिए हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ड्यूल नेचर, both of them are enough to fail the Bohr's model. So now we have quantum mechanical model of the atom. What are the important features of this model? First is energy of electron in an atom is quantized. That means it can have only fixed specific values. तो ये मेन बात है. quantized का क्या मीनिंग है? discrete independent values को हम quantized बोलते हैं.
ठीक है। तो ऑर्बिटल के जो एटम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन है, उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड एनर्जी है। आप जानते हो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, सेकेंड ऑर्बिट हैज हायर एनर्जी, थर्ड हैज इवन हायर एनर्जी। दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड। वी कैन राइट डिस्क्रीट एज वेल एज इंडिपेंडेंट वैल्यूज, discrete independent values. Next, the region where probability of finding electron is maximum is called as orbital. तो ये points जो हैं orbital के concept के आने से ही बोहर मॉडल फेल होता है। बोहर ने फिक्स्ड पोजीशन बता दिया था इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट का। बोहर के अकॉर्डिंग तो ऑर्बिट है विच इज ए फिक्स्ड पाथ, बट ऑर्बिटल is the region in three-dimensional space where probability of finding electron is maximum. इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। एंड अगर हम इस तरह से डॉट डॉट लगा के शो करते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ डॉट्स के थ्रू आप शो कर सकते हो द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज शोन थ्रू दीज डॉट्स, राइट। तो जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में अगर बात करें, देन वी कैन से कि क्लाउडी डे पे देयर इज ए चांस टू रेन, देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे, बट देयर इज नो सर्टेनिटी। क्लाउड्स में डिसअपियर ऑल्सो, राइट। तो बोहर को भी प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बोलना चाहिए था, बट उसने सर्टेनिटी की टर्म्स में बोला। उसने सर्टन होके बता दिया कि ये रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट का, ये एनर्जी है, ये एंगुलर मोमेंटम है। तो सर्टन वैल्यूज कैसे आ सकती हैं अगर यहाँ पे चांस प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में बोलना है, चांस लेके बोलना है, मतलब आपको ये कहना है कि जहां इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो पॉइंट ऑर्बिटल है। नेक्स्ट यू हैव एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, चाहे वो 1s ऑर्बिटल है, 2s है, 2p सबशेल होता है। 2p सबशेल के आगे 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? 2px, 2py एंड 2pz। सबके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। These are the main features of quantum mechanical model of the atom. Next आता है हमारे पास quantum numbers, मेन टॉपिक चैप्टर का। क्वांटम नंबर्स इज द सेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन नंबर्स विच आर नीडेड टू हैव फुल इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, ऑर्बिट का शेप एंड ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब क्वांटम नंबर्स की हेल्प से पता चलता है। 4 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, क्वांटम नंबर्स के लिए आप कह सकते हो ये वो नंबर है जो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताते हैं। जैसे कि किसी का एड्रेस है सेक्टर 40 एंड देन यू हैव आफ्टर 40 इट इज 40A और B और C और D, 4 पार्ट्स होते हैं हर सेक्टर के। उसके बाद हाउस नंबर चाहिए, तो एक सिंगल सेक्टर 40 बताने से तो पूरा एड्रेस नहीं मिलेगा। इसी तरह सिर्फ बता दिया इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है या सेकंड ऑर्बिट में, दैट इज नॉट सफिशिएंट। उस ऑर्बिट के फर्दर पार्ट्स हैं, उसके अंदर सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको 4 नंबर देने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देने के लिए। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू हमने 3 नंबर डिराइव किए। फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और लास्ट वाला जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो बाद में ऐड किया गया। सो पहले नंबर की बात करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए अगर हम देखें तो ये नंबर हमें क्या क्या बताता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल टेल अबाउट द रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट जैसे कि आप देखते हो 0.529 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉन, राइट। तो यहां पे जो n है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। एनर्जी -13.6 इंटू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यहाँ पे जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती हैं। 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट, 3 मीन्स थर्ड ऑर्बिट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इवन एंगुलर मोमेंटम में भी n आता है। mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π, इसमें जो n है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ऐसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो हुआ सेकंड, वो आपको शेप के बारे में बताएगा। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर L जो है इट टेल्स अबाउट
द शेप ऑफ ऑर्बिटल। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एंगुलर मोमेंटम भी बताता है, L इंटू एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम इन एन ऑर्बिटल। एंगुलर मोमेंटम किसी ऑर्बिट का ये रिलेशन से मिलता है, mvr इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। यहाँ n ऑर्बिट है और ये ऑर्बिटल के लिए है, सब शेल के लिए या ऑर्बिटल के लिए। आफ्टर दैट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल टेल अबाउट द ओरिएंटेशन। थर्ड नंबर किसका है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट टेल्स अबाउट, इसका सिंबल M, इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। यहां से पता चलता है कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, s ऑर्बिटल का कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं होता, p ऑर्बिटल्स आर डम्बल शेप्ड, d आर डबल डम्बल्ड। एंड नेक्स्ट इज स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यूज प्लस हाफ माइनस हाफ होती हैं। प्लस हाफ शोज दी क्लॉकवाइज स्पिन एंड माइनस हाफ शोज दी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। आगे हमें क्या दिया है? नंबर ऑफ सबशेल्स इन एन ऑर्बिट। ये मेन क्वेश्चन है जो कि एंट्रेंस में आएंगे, जेईई मेंस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको पूछा जाएगा एक ऑर्बिट में कितने सबशेल हैं। तो अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबशेल्स इन एन ऑर्बिट, तो उसके लिए आप n वैल्यूज, अगर n 1 है तो उसका l वैल्यू 0, मतलब एक ही सबशेल है फर्स्ट ऑर्बिट में, 1 सबशेल। इफ n इज 2 तो l वैल्यूज होती हैं 0 एंड 1, तो इनके सिंबल 2s एंड 2p, 2 सबशेल हो गए। n इज इक्वल टू 3 तो l वैल्यूज विल बी 0 1 एंड 2, तो ये सिंबल हो गए 3s 3p 3d। आप देख रहे हो थर्ड ऑर्बिट के 3 सबशेल हैं, सेकंड के 2 ही सबशेल थे, फर्स्ट का एक ही सबशेल था। तो n वैल्यू मतलब it is number of subshells in an orbit is nothing but the n value. Number of orbitals in a subshell, आगे देखिए number of orbitals हम कैसे निकालते हैं। orbitals in a subshell अगर कैलकुलेट करने हैं तो ऑर्बिटल के लिए m लेते हैं और सबशेल का सिंबल l होता है। m वैल्यूज आर फ्रॉम -l टू 0 टू +l, टोटल 2l + 1 बन गया। जैसे कि हमें आप L इज इक्वल टू 0 है तो ये हुआ S सबशेल, S सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स हैं ये पता करना है, तो हम 2l + 1 यूज करेंगे एंड इट विल कम आउट टू बी 1 ओनली। S सबशेल का एक ही ऑर्बिटल है। अगर L इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो ये बन जाता है P सबशेल। P सबशेल के अंदर ये M वैल्यूज आएंगी 2l + 1, इट विल बी 2 × 1 + 1 मतलब कि 3 ऑर्बिटल्स आ गए इस P सबशेल में। तो किस कभी भी आपको ऑर्बिटल्स का टोटल नंबर चाहिए तो ये रिलेशन यूज होगा 2l + 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n², ये तो हम पहले से ही जानते हैं। जैसे कि सेकंड ऑर्बिट है तो 2n² करोगे तो इट विल बी 8, थर्ड ऑर्बिट में 2n², n की वैल्यू 3 डालोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज 2, कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें इलेक्ट्रॉन 2 ही आएंगे, चाहे वो 2p का ऑर्बिटल है, 3p का है या 3d का है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में एडजस्ट होंगे विद एंटी पैरेलल स्पिन। वन विल बी हैविंग क्लॉकवाइज स्पिन, अदर विल बी एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल। एक सबशेल में देखो, एक सबशेल में हमने अभी अभी ऑर्बिटल्स कैलकुलेट किए, ऑर्बिटल्स अभी अभी निकाले थे इन ए सबशेल। इट इज इक्वल टू 2l + 1 और इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट होते हैं 2। इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, सॉरी मैंने गलती से ऑर्बिट बोल दिया, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 है, अगर ऑर्बिट में चाहिए तो 2n²। देयरफॉर वी कैन से, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2l + 1 which will be 4l + 2। 4l + 2 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होंगे किसी भी सबशेल के अंदर। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चंस आर गिवन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated in। फर्स्ट है n इज इक्वल टू 4 एंड s इज इक्वल टू +½ n 4 एंड s ½ दिया है। n इज इक्वल टू 4, s इज इक्वल टू +½ ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें लिखना है। तो n4 का मतलब फोर्थ ऑर्बिट। अब फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स मुझे निकालने हैं तो हम
क्या करेंगे, 2n स्क्वायर यूज करेंगे, 2n स्क्वायर से 2 इंटू 4 स्क्वायर, ये बनता है 32, और 32 में से हमारा आंसर बनेगा 16, क्योंकि s प्लस हाफ इज फॉर 16 इलेक्ट्रॉन्स एंड s इज इक्वल टू माइनस हाफ इज ऑल्सो फॉर 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका इस क्वेश्चन का तो आंसर आ गया 16। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, इसका आंसर हम यहां मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट इज n इज इक्वल टू 5 एंड l इज इक्वल टू 3। n 5 एंड l 3 क्या होता है, ये सेकेंड पार्ट, फिफ्थ ऑर्बिट एंड l वैल्यू के लिए आप लिखो 0 1 2 3, सिंबल्स आर s p d एंड f। मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है 5f में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसी भी f सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इलेक्ट्रॉन्स इन 5f आर 14। तो हमारे पास यही पूछा जा रहा था ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन n इज इक्वल टू 5 एंड l इज इक्वल टू 3, इट इज 14। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब आता है नोड्स। द सरफेस पासिंग थ्रू न्यूक्लियस विद रिस्पेक्ट टू एन ऑर्बिटल वेयर देयर इज ए जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज नोड। इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी जहां पे जीरो है वहां पे नोड होता है, उसको नोड कहते हैं। जैसे कि हमें अगर ये 1s का शेप बना दिया, अब मुझे 2s बनाना है, तो 2s के अंदर नोड है, 1s में तो कोई भी नोड नहीं थी। 2s इज लाइक दिस, 2s और 1s के बीच में जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी जीरो है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज नोड। तो उसको हम रेड पेन से शो करते हैं। सेंटर में ये स्फेरिकल नोड आ रही है, दिस इज नोड प्रेजेंट इन 2s। और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो दो तरह की नोड्स होती हैं, रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड्स आर गिवन बाय n माइनस l माइनस 1, वेयर एज एंगुलर नोड्स आर गिवन बाय l, और दोनों को ऐड करोगे तो टोटल नोड्स इज n माइनस 1। Right? Let's solve this question now. Find out the number of spherical nodes in 3p. Spherical nodes हमें निकालनी है किसके अंदर, 3p के अंदर। तो n minus l minus 1 we will be writing, and n value is given 3 और l value हो गया 1, क्योंकि p का l 1 होता है। Your answer is 1. Spherical nodes in 3p के बाद चाहिए 5s में। 5s means same relation n minus l minus 1, n value 5 और l value 0, तो ये बन जाएगा 4 spherical nodes are there in 5s। spherical node को रेडियल नोड भी कहा जाता है। फिर है 4d। 4d के लिए आप सेम रिलेशन यूज करेंगे, n is 4 एंड d के लिए l वैल्यू 2 होती है, एंड यू आर गेटिंग आंसर एज 1। फ्रॉम हेयर द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन स्टार्ट्स। कीप इन माइंड, एंगुलर नोड को प्लेनर नोड भी कहते हैं, उसके लिए एल वैल्यू रिलेशन यूज करना है, पर रेडियल नोड का दूसरा नाम स्फेरिकल नोड भी होता है। एंड you have calculated the nodes in all 3 subshells, right? Next is exceptional electronic configuration. Half filled and completely filled orbitals have extra stability due to symmetry and high exchange energy. So जैसे कि हम देखते हैं D5 arrangement, D10 arrangement, they are more stable. D5 is more stable than D4. दो reasons होते हैं, एक symmetry और दूसरा एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी को अगर हमें चेक करना है तो हम पहले D5 एंड D4 का कंपैरिजन करेंगे। लेफ्ट पे हम D4 रखते हैं, D4 एंड D5। इन D4 अगर आप अरेंज करते हो, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने d ऑर्बिटल्स में अरेंज किए। अब हम अनदर अरेंजमेंट शो करेंगे थ्रू एक्सचेंज। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये कितनी पोजीशंस एक्सचेंज कर सकता है, 3 पोजीशंस। उसके बाद अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को फिक्स कर दिया, फर्स्ट को का पोजीशन फिक्स हो गया। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये पोजीशंस एक्सचेंज कर सकता है जो कि 2 हैं। फिर आता है फर्दर वी हैव दिस अरेंजमेंट, another 4 electrons and we can write the third position. So total exchanges कितनी हुई, 2 plus 3 plus 2 plus 1, total number of exchanges। अगर हम D5 की बात करते हैं
तो D5 में आपके पास ये अरेंजमेंट है, दीज आर दी 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये किस तरह से पोजीशन एक्सचेंज करता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। मोर इज द नंबर ऑफ पोजीशंस एक्सचेंजेबल, मोर विल बी दी एक्सचेंज एनर्जी रिलीज्ड। आपके पास यहां पे अरेंजमेंट चेंज होने के लिए पहली सिचुएशन में 4 पोजीशंस हैं। फिर सेकंड की बात करें अगर, इन सेकंड वी हैव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को फिक्स कर दिया, तो ये 3 पोजीशंस। फिर आगे और अब सेकंड को भी फिक्स कर देंगे, फर्स्ट और सेकंड हम दोनों को अगर फिक्स कर दें, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फिक्स कर दिए, तो ये पोजीशंस बनती हैं, राइट। फिर एक और देखते हैं, वी हैव दिस अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 एंड इन दिस मैनर एक्सचेंजेस आर 3 + 2 + 1। पहला 4 था, 4 + 3 + 2 + 1. This is coming out to be 10 exchanges. More is the number of exchanges, more is the energy released and more is the stability. और D5 सिमेट्रिक तो है ही है, 5 इलेक्ट्रॉन है, सब ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो ये स्टेबल है सिमेट्री की वजह से भी और एक्सचेंज एनर्जी की वजह से भी। आगे है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर +2 Fe+2 एंड देयर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहां से स्टार्ट करेंगे। कॉपर +2 दिया है पहले और दूसरे नंबर पे दिया है Fe+2 और उनकी दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कॉपर होता है 29 पे कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d10। कॉपर एक एक्सेप्शन होता है क्योंकि d10 एक स्टेबल सिस्टम है, तो d9 नहीं होता, इलेक्ट्रॉन 4s वाला 3d9 में जंप कर जाता है। तो अब कॉपर +2 चाहिए, इस Fe+2 को पहले यहां से हटा दो। कॉपर +2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करे जाएंगे, 4s से हमने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, एक हमने 3d से हटा दिया। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करना है तो ये अरेंजमेंट आएगा 2 4 6 8 एंड 9, राइट। नेक्स्ट यू हैव Fe, इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही आया। Fe का एटॉमिक नंबर है 26, 26 is 4s2 3d6। While writing the configuration of ions, remove electron from the 4s first. 4s is the valence shell. Valence shell का इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले निकलेगा। और अब आप इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को जब शो करोगे तो ये एक मिनट पहले इनको सिमेट्रिकली बनाना पड़ेगा। ऑल 5 ऑफ देम, वी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स। कैन यू सी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 4 इन Fe+2, unpaired electrons are 4 और unpaired electrons in copper +2। आपने D9 अरेंजमेंट देख लिया, ये D9 है 3d9, सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आंसर है 1, राइट। तो ये डिटेल आपने इस स्लाइड पे देखा कॉन्फ़िगरेशन, और प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा, नोड्स कितनी कितनी हैं। उससे पीछे वाली स्लाइड में हमने क्वांटम नंबर्स देख लिए, क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल एंड ऑल दैट। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल बी हैविंग क्वेश्चंस। इसमें एक मॉलिब्डेनम का कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शनल है, जैसे कॉपर और क्रोमियम है वैसे मॉलिब्डेनम भी एक्सेप्शन है। क्रोमियम इज 4s1 3d5 एंड मॉलिब्डेनम इज बिलो क्रोमियम इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये बन जाएगा 5s1 4d5। जैसे D5 हाफ फिल्ड था वैसे 4d5 हाफ फिल्ड है। Now we will be taking up questions which come in JEE Mains on the basis of these quantum mechanical model and quantum numbers, right? So let's start with the questions. Question number 1. If two particles A and B having masses in the ratio 1:4 are moving with the same velocity, the ratio of wavelengths associated with them will be in the ratio. Ratio for mass is given to you and ratio for wavelength you have to calculate. So we can write MA upon MB is given 1/4. Let's calculate ratio of the wavelengths. Velocity is given to be same. Apply the relation lambda is h upon mv, तो दोनों का रेशो ले लेंगे। lambda A upon lambda B is equal to
मास के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है लैम्डा, हायर इज द मास लेसर इज द वेवलेंथ। सो ये वैल्यू आ गई 4/1, दिस इज लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी। 4/1 मीन्स this answer option B, 4:1 is given in option B. Got it? Simple question. The question is showing that particle with higher mass will have lesser wavelength. Moving to the next now, question number 2. If an electron, a proton and an alpha particle, they have same de Broglie wavelength, their kinetic energies are related to one another as। 3 पार्टिकल हमें दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा अगर उनका वेवलेंथ सेम है। लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी, हाउ आर दे रिलेटेड? लैम्डा इज h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। दिस रिलेशन वी हैव डिराइव्ड ऑल्सो। तो आप देख सकते हो कि जहां पे वेवलेंथ ज्यादा होगी वहां मास और काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्ट कम होगा। बट हमें क्या दिया है, हमें तो वेवलेंथ सेम दी है, वेवलेंथ इज गिवन टू बी सेम। तो कैन आई राइट √m इंटू ई इज कांस्टेंट, दिस इज हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू। तो आप क्वेश्चन के अंदर क्योंकि लैम्डा सेम था वहां से हमें ये मिला। तो हायर मास किसका है वो देखते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वी नो इज लेसर देन मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन इज लेसर देन मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो हमें किस पे कमेंट करना है, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का कम है, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन देन अल्फा पार्टिकल। क्यों? क्योंकि हमें वेवलेंथ कांस्टेंट दिया था। एज अ रिजल्ट √2 into m into e is again a constant value. So check the options. Kinetic energy of electron is more than proton and then alpha particle. Alpha particle helium nucleus होता है, वो प्रोटॉन से भी हैवी होता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 टाइम्स हैवी है। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Got it? Answer is option A. Moving to the next now, calculate the wavelength in nanometer associated with the proton moving at this velocity 1 into 10⁻³ meter per second. आपको wavelength calculate करना है। So we can write lambda is h/mv. आपको lambda nanometer में report करना है। First we will be doing the question in SI units, then we will change. तो lambda is equal to 6.626 into 10⁻⁻34, ये है प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इट इज इन जूल सेकेंड, डिवाइडेड बाय मास। मास है फॉर पार्टिकल 1 into 10 1.67। ये जो 1 into 10⁻³ था वो वेलोसिटी था। आपका पार्टिकल प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास हमें गिवन है 1.67 into 10⁻⁻27 एंड द वेलोसिटी इज ऑल्सो गिवन 10⁻³ ये है मीटर पर सेकेंड में और मास है किलोग्राम में। लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है। लैम्डा विल कम आउट टू बी 3.96 into 10⁻⁻10। इट कैन बी रिटर्न एज, ये तो अभी मीटर में है, हमें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। 0.396 into 10⁻⁻9 मीटर एंड नैनोमीटर कितना होता है 10⁻⁻9 मीटर। तो ये बन गया 0.4 अप्रॉक्सीमेटली। 0.396 को 0.4 ले लिया, 0.4 नैनोमीटर। गॉट इट? तो आंसर है ऑप्शन ए। दिस यू कैन सी, दिस इज अ प्रीवियस ईयर AIEEE 2009 क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन पे क्वेश्चन आ रहा है। मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, लैम्डा इज टू बी कैलकुलेटेड। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, this question is related with the wavelength and velocity again. Question says the wavelength of electron and proton if they are equal. Consider wavelength of electron and proton to be equal. The ratio of their velocities will be, you are given mass of electron and mass of proton also. Ratio लेते हैं, lambda होता है h/mv. I can write the lambda of electron divided by lambda of proton is equal to mass of proton, velocity of proton divided by mass of electron and velocity of electron.
ठीक है, तो इनका जो वेवलेंथ है वो हमें इक्वल दे दिया, मतलब हमारा इक्वेशन का लेफ्ट साइड इक्वल है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा पी, देयरफॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो अब चेक करते हैं क्या क्या वैल्यूज हमें गिवन है। रेशियो ऑफ वेलोसिटीज हमें कैलकुलेट करना है, तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करिए 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, एंड प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27, ये भी kg में है। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन हमें कैलकुलेट चेक करना है, तो रेशो अल्टीमेटली बन जाएगी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन विल बी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, एंड आफ्टर डिवाइडिंग you will get this will come out to be 1835.16. It is 1835.16 means आपकी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये डी ऑप्शन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेवलेंथ सेम हो तो कितना फास्ट मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, 1835 टाइम्स। 1835 का मतलब आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ये वही बात है कि जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा है उसकी वेवलेंथ कम होगी, बट अगर वेवलेंथ इक्वल है तो जिसका मास ज़्यादा है उसका वेलोसिटी कम होगा, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 5। When an electron is accelerated from rest through a potential difference v, then its velocity is given by। इलेक्ट्रॉन को स्पीड अप कर दिया, पहले वो रेस्ट पे था, पोटेंशियल डिफरेंस v लगाया, तो हमें इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालना है। कैन वी से काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी हम लिखते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज का वैल्यू ही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज v, तो दोनों को अल्टीमेटली इक्वेट कर देंगे। यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू e इंटू v, तो ये लिख बन गया 2ev। एज अ रिजल्ट v velocity is 2 into ev divided by m, everything under the root। गॉट इट, सिंपल कॉन्सेप्ट कि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, कुछ x वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो चार्ज इनटू वोल्टेज से हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया, अल्टीमेटली उसको काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करते हैं, आंसर बनता है ऑप्शन सी। सिंपल बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Next question is a question from JEE Advanced 2013. Atomic masses of helium and neon are given to us. They are 4 and 20 AMU respectively. Value of de Broglie wavelength of helium gas at this temperature -73 degree पे इसका है m times that of de Broglie wavelength of neon at 727 degree Celsius. Got it? Question is clear? So in the question, temperatures are given. टेम्परेचर हीलियम का अलग है, नियॉन का अलग है, तो आपको पहले मास देखिए। एटॉमिक मास फॉर हीलियम इज 4, एटॉमिक मास ऑफ नियॉन इज 20 यूनिट्स। गॉट इट? तो रेशो लेते हैं, रेशो ऑफ मासेस आपके पास आ रहा है 20/4, मतलब 5:1। काइनेटिक एनर्जी नहीं दिया है, टेम्परेचर दिया है, बट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो सैंपल हमारा जो हीलियम का है वो है -73 डिग्री के ऊपर। हीलियम के लिए आप कर लेंगे टेम्परेचर ऑफ हीलियम एंड टेम्परेचर ऑफ नियॉन। लेट्स कीप नियॉन इन द न्यूमरेटर। नियॉन के लिए हमें दे रखा है 727 डिग्री सेल्सियस। 727 में 273 ऐड करो ताकि केल्विन बन जाए, और ये दिया है -73 डिग्री, दोनों को केल्विन में कन्वर्ट किया। दिस इज 1000 एंड दिस इज 200। गॉट इट? तो अब हम ड्यूल नेचर के ऊपर डी ब्रॉगली इक्वेशन लगाते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। दिस रिलेशन वॉज ऑलरेडी डिराइव्ड एंड द क्वेश्चन इज सेइंग you have to calculate the value of de Broglie wavelength of helium, and
इट इज टू बी कंपेयर्ड विद द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ नियॉन। दोनों का आपको रेशो लेना है, हीलियम का भी नियॉन का भी। कैन इट बी रिटन एज लैम्डा हीलियम अपॉन लैम्डा नियॉन इज इक्वल टू मास ऑफ हीलियम and kinetic energy of helium, and neon in the numerator, helium in the denominator. Is it okay? And root is also there. तो देखते हैं क्या क्या रेशोस हमने ले रखी हैं। ऑलरेडी हमने मास का रेशो लिया, मास ऑफ नियॉन अपॉन हीलियम 5 आ रहा है, एंड टेम्परेचर ऑफ हीलियम अपॉन नियॉन इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 5, 1000 अपॉन 200 मतलब 5। तो ये बना, इट इज इक्वल टू 5 into 5 and root is also there, hence answer is 5। wavelength of helium and wavelength of neon कंपेयर करेंगे तो हीलियम का वेवलेंथ नियॉन से 5 गुना ज्यादा है। इज इट ओके? क्वेश्चन को फिर से देखिए, आपको ये रिलेशन अप्लाई करना है, लैम्डा इज h अपॉन 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, उसके साथ आपने रेशो लिया, रेशो लेके ये वैल्यू आती है, आंसर 5 है। ऑप्शंस पे आते हैं, 5 मीन्स डी इज द आंसर, डी ऑप्शन। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, 7th। In an atom, an electron is moving with the speed of 600 meter per second. This question is on Heisenberg's principle now, and question is from AIEEE 2009। स्पीड हमें दे रखा है और उसका एक्यूरेसी भी दिया हुआ है। Certainty with which the position of electron can be located is delta x, मतलब आपको कैलकुलेट करना है, and velocity is given 600 मीटर पर सेकेंड। तो डेल्टा v कैलकुलेट करेंगे, 600 इंटू 0.005 अपॉन 100 कर दिया, इतने परसेंट एक्यूरेसी था, 0.005%। तो ये वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन जो भी आएगी हम बाद में पुट करेंगे। हम हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल लगाते हैं, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। मास इलेक्ट्रॉन का हमें गिवन है, सब वैल्यूज पता हैं, तो ये एक्सप्रेशन में डेल्टा एक्स को लेफ्ट पे रखिए, बाकी सब राइट पे जाएगा। h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा वी, एंड 6.626 into 10 raised to power minus 34 divided by 4 into pi value, mass of electron 9.1 into 10 raised to power minus 31 and 0.03। this will come out to be, अभी यहाँ कैलकुलेट करके पुट करेंगे, 0.03 is coming for delta v। डेल्टा v मैंने पुट कर दिया, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये आता है 1.93 into 10 raised to power minus 3 meters। this is delta x। coming to the option B option, हमारा आंसर 1.92 into 10 raised to power minus 3। got it? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। अगेन क्वेश्चन ऑन अनसर्टेनिटी। इफ द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल आर इक्वल, द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी वुड बी। क्या क्या इक्वल दिया है? अनसर्टेनिटी मतलब डेल्टा पी ऑफ पार्टिकल जिसका मास m है वो डेल्टा x के इक्वल है। कहने का मतलब m डेल्टा v इज सेड टू बी इक्वल टू डेल्टा x। फाइंड आउट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। डेल्टा v हमें कैलकुलेट करना है। तो ये क्या बना? हमारा एक्सप्रेशन था डेल्टा x m डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो हम इसको लिख देंगे, डेल्टा x की जगह आप लिखिए m डेल्टा v, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इक्वल। ये बना m स्क्वायर डेल्टा v स्क्वायर इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। गॉट इट? तो अब आगे देखते हैं, डेल्टा v लेफ्ट पे रहेगा, बाकी सब राइट पे। h अपॉन 4 पाई एंड m स्क्वायर, एंड डेल्टा v है लेफ्ट, तो रूट आएगा राइट साइड पे। तो आगे देखो, h अपॉन 2 पाई को बोला जाता है h बार। न्यू सिंबल इज गिवन, h अपॉन 2 पाई इज h बार। तो हमारी सारी ऑप्शन h बार के टर्म्स में है। तो ये बन गया डेल्टा v इक्वल टू h बार अपॉन 2 एंड m स्क्वायर रूट के अंदर है तो m बाहर आ जाएगा, रूट में रहेगा सिर्फ h बार अपॉन 2 एंड m इज कमिंग आउट साइड।
ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन आपका आंसर। दोनों को हमने इक्वेट किया। कंडीशन वॉज गिवन टू अस दैट पोजीशन और मोमेंटम का जो एरर है, जो अनसर्टेनिटी है, वो इक्वल है। तो हमें डेल्टा वी की टर्म्स में इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है। डेल्टा वी इज कमिंग आउट टू बी 1/m h/2 एंड h/2 रूट के अंदर। Got it? So this is also an important question. And coming to the next, now the question is on the nodes. The number of spherical nodes, angular nodes and nodal plane. तीन आंसर करने हैं आपको, एक spherical node का, एक angular node का, एक nodal plane का, for 3pz in the proper order. Nodes कैसे कैलकुलेट होती हैं? Spherical node is also called as radial node. इसके लिए आप यूज करेंगे n-l-1। तो n वैल्यू है 3pz is given। p वैल्यू जो p सबशेल होता है उसका l वैल्यू 1, तो ये आ गया 1। टोटल 1 spherical node is present in 3pz। फिर आगे देखते हैं एंगुलर नोड। एंगुलर नोड के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट इज गिवन बाय L वैल्यू, और इसकी L वैल्यू भी 1 है 3pz की। फिर क्या है? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन इज नथिंग बट एंगुलर नोड, तो वो भी L वैल्यू, हेंस दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो क्या क्या सीक्वेंस में हमें आंसर देना था? एक पूछा गया था स्फेरिकल नोड, फिर आपसे पूछा एंगुलर नोड, देन यू आर सपोज टू टेल अबाउट नोडल प्लेन। All the answers are coming 1, 1 and 1. Got it? तो ऑप्शंस देखते हैं। बी ऑप्शन आंसर। एक अगर हमारे पास 3pz सबशेल होगा तो उसमें एक है spherical node, एक है angular node, और nodal plane is also 1. So question number 10. The orbital angular momentum of an electron revolving in an orbit is given by root of L into L plus 1 h/2 pi. This momentum for an s electron will be. Question came in 2003 AIEEE, so it is an important question. आपको angular momentum calculate करना है। Angular momentum is given by capital L and it is a vector quantity. It is root L into L plus 1 h/2 pi. h/2 pi रूट से बाहर है, तो s ऑर्बिटल के लिए आपको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन s सबशेल और यू कैन से s ऑर्बिटल। तो अब आप देखिए, अगर हमारे पास L वैल्यू 0 होती है तो वो s सबशेल है। व्हेन L इज 1 इट इज P, व्हेन L इज 2 इट इज D, व्हेन L इज 3 इट इज F। तो अब हम क्या करेंगे? L को 0 लेंगे क्योंकि s के लिए कैलकुलेट करना है। लेट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू नाउ फॉर L। आपने यहाँ 0 वैल्यू पुट करनी है। 0 पुट करके 0 into h/2 pi, so everything got 0. S सबशेल का एंगुलर मोमेंटम 0 होता है। ऑप्शंस में कहीं पे h/2 pi दे रखा है, कहीं रूट h/2 pi दे रखा है। बी केयरफुल, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन बी विच इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इन 3D सबशेल हैज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू। IIT 1997 का क्वेश्चन है। पहले आपने S के लिए एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किया, अब 3D के लिए कैलकुलेट करना है। 3D मीन्स L वैल्यू चेक करते हैं पहले, 0, 1, 2, 3 एंड सिंबल्स आर S, P, D एंड F, राइट। तो अब आपने D के लिए L वैल्यू को देखो, जब D सबशेल होगा तो L वैल्यू 2 होती है। अब हम कैलकुलेट कर देंगे एंगुलर मोमेंटम। इट इज रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 h/2 पाई। तो आप L को 2 पुट करो, 2 इंटू 2 प्लस 1 h/2 पाई, तो ये बना रूट 6 h/2 पाई। ऑप्शंस आर इन टर्म्स ऑफ h/2 पाई। तो एक ऑप्शन है रूट 6 h/2 पाई, नेक्स्ट है रूट 2 h/पाई। Your answer will be C option, root 6 h/2 pi. Clear? Next आता है question number 12. The number of electrons. Now these questions are related to quantum numbers and electronic configuration. Number of electrons in D subshell of chromium plus 2 is not equal to.
क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसके बाद आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे, फिर आप डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, then the comparison will be done with the various options. Let's write chromium first of all. Chromium atomic number 24. 24 है तो ये बन जाएगा आर्गन 4s1 3d5, ये वही है जिसमें हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है, सब शेल इज हाफ फिल्ड. नाउ रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्रोमियम की जगह बना दो क्रोमियम +2. क्रोमियम +2 बन गया 4s0 3d4. 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, एक s में से और एक 3d में से. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं डी सबशेल के अंदर? हमारा आंसर है 4. डी इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम +2 आर 4. ऑप्शन ए इज s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियॉन. फिर देखेंगे बी ऑप्शन, कमिंग टू s इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियॉन. तो नियॉन हैज ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2 2s2 2p6. Can you see total 4 electrons are there in the s subshell? S electrons in neon are 4. B option में है unpaired electrons in Fe. For Fe, if I have to write, atomic number is 26. Configuration में पहले argon, argon is the noble gas, 18 electrons, then 4s2 3d6. अब टोटल 26 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं. 26 को आप अरेंज करिए. 26 में आपको दिखेगा जब D6 बनाते हैं, D6 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. टोटल वी हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ये देखिए 1 2 3 एंड 4. तो ये भी आंसर नहीं है. सी ऑप्शन है p इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन. लेट्स राइट फॉर सी, p इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8. तो ये आ गया 1s2 2s2 2p4. p इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्सीजन इज अगेन कमिंग आउट टू बी 4. डी ऑप्शन क्या है? d इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+3. Fe+3 is called as ferric. D electrons in Fe+3. First we will write Fe, which will be having 4s2 3d6. 26 atomic number होता है. अब 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं. बी केयरफुल, पहले वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है. तो 4s मैंने बना दिया 0 3d5. सो D इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+3 आर 5. तो ये आपका आंसर है. हमें पूछा गया था विच इज नॉट इक्वल टू. नॉट इक्वल टू मीन्स डी ऑप्शन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम नहीं आ रहे हैं. बाकी सबके अंदर 4 आ रहे हैं, डी के अंदर 5 आ रहे हैं. गॉट इट? तो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस आपको लिखनी है, उसके बाद कंपेयर करना है. आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलीनियम इज. गैडोलीनियम एक लेंथेनॉइड है, एटॉमिक नंबर है 64. तो आप क्या करेंगे? पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. गैडोलीनियम से पहले जो नोबल गैस आती है वो है जीनॉन. जीनॉन इज 54. जीनॉन के बाद 6s, उसके बाद आएगा यहाँ पे 5d, देन 4f. 5d के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आता है. 4f में 7 कर दिया, टोटल 64 बनेगा. यू कैन राइट 54 पे जीनॉन. 54 + 2 + 1 + 7, ये टोटल 64 बन रहा है. तो याद रखने की बात ये है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन फॉर एफ ब्लॉक में जो लेंथेनॉइड्स हैं, फॉर लेंथेनॉइड्स इट इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन है n-2f1 to 14, ns2 एंड n-1 d0 to 1. n-1 d के अंदर या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या बस एक भी नहीं, कभी कभी एक भी रिमूव हो जाता है. ये n वैल्यू 6s है, n-1 बना 5, 5d में 1 और n-2 बना 4, 4f में 7 हो गया. इंपॉर्टेंस ये थी कि f7 हाफ फिल्ड होता है, इस वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है. आप देख सकते हो इट इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, AIEEE 2011 का क्वेश्चन है. 4f7 6s2 5d1, राइट. तो ये हमारे पास गैडोलीनियम की कॉन्फ़िगरेशन. जनरल कॉन्फ़िगरेशन अगर पता हो तो इजी रहता है,
और जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखें सबसे पहले नियरेस्ट नोबल गैस को हम असाइन करेंगे। नियरेस्ट नोबल गैस थी ज़ीनॉन, सो 54 इलेक्ट्रॉन तो सीधा एडजस्ट होते हैं। इस तरह से आपको अरेंजमेंट भी देखना है कि पहले हम 1s को फिल करते हैं, 1s 2s 2p। फर्स्ट यू राइट इन दिस मैनर इन अ स्ट्रेट लाइन। थर्ड ऑर्बिट के 3 सब शेल, फोर्थ के 4 पार्ट्स, वो पार्ट जो हैं उनको सब शेल कहते हैं। अगर हम फिफ्थ ऑर्बिट लिखेंगे तो 5 आ जाएंगे, 5d 5f एंड 5g। इफ आई कम टू 6 तो 6s 6p 6d 6f 6g 6h। after that you put these diagonals and फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इलेक्ट्रॉन 1s में ऐड करते हो। एरो का डायरेक्शन देखो, 1s के बाद 2s, 2s के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 2p, देन 3s 3p, 4s 3d 4p, 5s 4d, नेक्स्ट विल बी 5p, 5p के बाद 6s। 5p पे नोबल गैस ज़ीनॉन खत्म होता है जब 5p 6 बनता है, तो हमने 6s में इलेक्ट्रॉन डालना है। 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, इस तरह से सीक्वेंस चलता है। तो इट इज़ अ मेमोरी एड टू राइट द अरेंजमेंट। अब आंसर देखते हैं। आंसर आया 4f7 5d1 एंड 6s2 मीन्स ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। तो क्वेश्चंस हमारे कॉन्फ़िगरेशंस पे हैं, क्वांटम नंबर्स पे हैं। नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe+2। Fe के अंदर जब +2 बनेगा तो डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? Fe बनता है आर्गन 4s2 3d6, राइट। तो हमारे पास 26 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन हम पहले रिमूव करते हैं। इट इज 4s0 3d6 Fe+2 वी हैव रिटन। तो डी सब शेल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब शेल आर 6, देयरफॉर आपका आंसर है ऑप्शन डी। डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछ ले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो D4 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल बी 4। D4 के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं और D6 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। पहले हमने D4 ड्रॉ किया, फिर हमने D6 ड्रॉ किया। D6 में ईच एंड एवरी ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन, फिर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं, D5 हो या D4 हो, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। बट हमारे क्वेश्चन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछ रहे हैं, हमें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 6 मतलब डी आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम AIEEE 2005. The question is, in a multi-electron atom, which of the following orbitals described by 3 quantum numbers will have same energy in absence of magnetic field and electric field? Same energy कब रहेगा? 3 क्वांटम नंबर हमें सबके दिए। फर्स्ट इज, लेट्स स्टार्ट राइटिंग अबाउट द फर्स्ट वन। फर्स्ट में दिया है N1, L0 एंड M0। कहने का मतलब जब L0 है तो ये S सबशेल हुआ, दिस इज 1s। फिर आता है N = 2, L0 एंड M0, ये हो गया 2s। ये L वैल्यू फिर से 0 आई थी तो ये बना 2s सबशेल। फिर दिया NS3, नंबर 3 पे क्या दिया है? N3, L1 एंड M1, दिस इज 3p। L = 1 मीन्स 3p सबशेल। पहले हम सबका सिंबल लिख रहे हैं, सबके डेजिग्नेशन देखते हैं। फोर्थ नंबर पे N3 एंड L2 दिया है। N is 3, L is 2 एंड M is 1, तो ये है 3D सबशेल। L2 का मतलब 3D। फिर नंबर 5, N is 3, L is 2, N वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, L2 एंड M0, ये भी 3D है। अब सिंबल में फर्क आएगा, दोनों 3D सबशेल हैं, बट जब M0 होगा तो इट इज 3D Z²। जब M1 होगा तो ये बनेगा 3D X² to Y²। दोनों D सबशेल के हैं। तो D के 5 ऑर्बिटल्स
डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट मीन्स ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी। कौन कौन से 5 हैं? 1 2 3 4 एंड 5। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, फिर डी एक्स स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर और फिर डी जेड स्क्वायर। ये पांचों मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट नहीं होते, इन पांचों का एनर्जी सेम है। तो एक सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका एनर्जी ऑलवेज सेम है। तो क्वेश्चन ने दिया था कि विच विल हैव सेम एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस के अंदर जो सेम सबशेल के होंगे उनका एनर्जी सेम होगा। आपका आंसर है 4th एंड 5th। 4th एंड 5th का मतलब ऑप्शन डी, राइट। जो फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट में 1s और सेकंड में 2s, इनका तो शेल ही अलग है। थर्ड का 3p दिया, ये भी डिफरेंट शेल है। तो आपका आंसर बनता है ऑप्शन डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following set of quantum numbers represents the highest energy in the atom? Again a previous year question, 2007 AIEEE का क्वेश्चन है। क्वांटम नंबर्स पे काफी क्वेश्चन आते हैं। हाईएस्ट एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है। सिंबल्स लिखने पड़ेंगे, N4 एंड L0। L को 0 देखते ही आप समझ जाओ ये S सबशेल है, दिस इज 4s। फिर आ गया 3s क्योंकि वो 3 दिया और वो 0 दिया है। देन इट इज 3p, 3s के बाद ये बना 3p। फिर आपको क्या गिवन है? n is 3 एंड l is 2, ये हो गया 3d, राइट। अलग अलग सबशेल्स के हमने सिंबल लिख दिए हैं। और हाईएस्ट एनर्जी किसका है? एनर्जी के लिए आप n प्लस l वैल्यू को कंपेयर करो, दिस इज कॉल्ड एज बोहर ब्यूरी रूल। n एंड l वैल्यू, पहले है 4s, 4s का n वैल्यू 4, l s वैल्यू s दिया है तो इट इज 0l, राइट। नेक्स्ट इज 3s, 3 प्लस 0, n प्लस l वैल्यू हम सबका लिख रहे हैं। फॉर 3p इट इज 3 प्लस 1 4 एंड फॉर 3d इट इज 3 प्लस 2 5। हायर इज द n प्लस l वैल्यू, हायर इज द एनर्जी। तो हाईएस्ट एनर्जी हमारी गिवन ऑप्शंस में हाईएस्ट एनर्जी 3d का आएगा। हाईएस्ट एनर्जी बिकॉज इट हैज हाई n प्लस l वैल्यू, राइट। तो आंसर देखते हैं, डी ऑप्शन आंसर है। 3d हैज गॉट द हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट n प्लस l से तो एनर्जी दिखेगा, बट कभी कभी n प्लस l वैल्यू सेम भी हो जाता है। जब n प्लस l सेम होगा फिर आप बोहर ब्यूरी सेकेंड रूल पे आते हो। सेकेंड रूल क्या है? इफ n प्लस l इज सेम देन द सबशेल विद लोअर n वैल्यू विल हैव लोअर एनर्जी, सबशेल विद हायर n वैल्यू विल हैव हायर एनर्जी, राइट। नेक्स्ट आता है another question on quantum numbers. Which of the following set of quantum numbers is correct for an electron in 4f orbital? 4f में इलेक्ट्रॉन है, आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताना है, वो तो 4 ही हो जाएगा। L वैल्यू विल बी 3, L0 पे सिंबल S, L1 है तो सिंबल P, L2 है D, L3 है तो F। तो ये वेरियस L वैल्यूज हमने लिख दिया, N एंड L वैल्यूज लिखे हैं। अब M चाहिए, फिर S देखेंगे। ऑप्शंस को साथ साथ देखना पड़ेगा। एक तो A ऑप्शन में N4 दिया है, एक C में और D में। N4 तो 3 जगह है, बट L वैल्यू 4 नहीं हो सकती। N एंड L आर नेवर इक्वल। L का वैल्यू जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, बट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इट गोज टिल n-1। n-1 पे रोक देना है, n और l को इक्वल नहीं करना कभी भी। तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया। ए और सी में से देखते हैं। ए के अंदर n और l जो दिया है वही n और l सी में दिया है। आगे देखो, अब m वैल्यू का डिफरेंस है। एक जगह m दिया +4, एक जगह दिया है +1। m वैल्यूज कभी भी l से एक्सीड नहीं करती। m की वैल्यूज स्टार्ट होती हैं -l टू 0 टू +l, वो उसके ऊपर नहीं जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि L3 है और M4 बन जाए। अगर L3 है तो M होगा -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2 एंड 3, बस -3 से +3 तक रहेगा।
आप ऑप्शंस में देखो 4 दिया एक जगह, वो तो गलत हो गया। सी विल बी योर आंसर बिकॉज m इज इक्वल टू 1 गिवन इन ऑप्शन सी, राइट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 18, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम AIEEE 2008। कंसिडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम। Number of electrons with azimuthal quantum number L is equal to 1 and L is equal to 2 are respectively। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं क्रोमियम में जिनका L1 है? L1 का मतलब p सबशेल, आप यहीं पे मेंशन कर दो। L is equal to 1 मीन्स p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर L equal to 2 मीन्स d सबशेल। P और D सबशेल्स के हमें इलेक्ट्रॉन्स पता करने हैं। क्रोमियम है 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 एंड 3d5। ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम 4s टू 3d। अब L इक्वल टू 1 देखते हैं, मतलब P के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए। P में ये 6 और ये 6, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर जिनका L वैल्यू 1 है। फिर L इक्वल टू 2 किस किस का है? L2 के लिए आपको D सबशेल देखना है। 3D में तो 5 इलेक्ट्रॉन है, सो L इज इक्वल टू 0 मीन्स S, L1 इज P, L2 इज D, L3 इज F। ये याद रखना है, जब भी क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन करें तो हम ये साइड पे लिख लें, इजी हो जाता है। सो 12 and 5, 12 and 5 means D is your answer. Clear? Question number 19. The number of radial nodes in 3s and 2p orbitals are. This is the IIT 2005 का क्वेश्चन है। आपको रेडियल नोड्स कैलकुलेट करनी है। रेडियल नोड्स के लिए रिलेशन होता है n-l-1। n वैल्यू इज 3, l इज 0 एंड -1 करने से 2 रेडियल नोड आ गई। इसी तरह 2p में कैलकुलेट करते हैं, ये तो था 3s का। फॉर 2p रेडियल नोड्स आर कैलकुलेटेड बाय द सेम रिलेशन n-l-1, इट इज 2 -1 -1, मतलब कोई भी नोड नहीं है। 2p में नोड नहीं होती, रेडियल नोड 3p में आएगी। ये हमारे पास 2p का शेप है, ये जो पॉइंट है ये है एंगुलर नोड। एवरी p ऑर्बिटल हैज 1 एंगुलर नोड, बट रेडियल नोड 2p के अंदर नहीं आती। 2p की जगह अगर हम 3p ड्रॉ करेंगे तो आपको रेडियल नोड दिखेगी। दिस इज 3p। सेंटर में जो मैंने डॉट्स के थ्रू दिखाया है वो नोड है। पूरी सरफेस के ऊपर जो नोड आती है उसी को रेडियल नोड कहते हैं, उसी को स्फेरिकल नोड कहते हैं, और जो सेंटर में आती है दैट इज एंगुलर नोड, राइट। तो हमारे क्वेश्चन में 3p नहीं दिया था, हमें तो 2p दिया था। 2p के अंदर एक भी रेडियल नोड नहीं है। हमारा आंसर बनता है 2 and 0। 2 and 0 मतलब ए आंसर। देयर इज no node in 2p but there are 2 nodes in 3s. Next question, which of 1s, 2p, 3d and 4f does not have any spherical or radial node? Radial node किस किस में प्रेजेंट नहीं है? does not have। सबके लिए कैलकुलेट करना होगा। 1s n-l-1 यूज करेंगे। 1 -0 -1 मतलब 1s के अंदर कोई भी रेडियल नोड नहीं है। 2p पे आते हैं, n-l-1, इट इज 2 -1 -1 मतलब इसमें भी रेडियल नोड प्रेजेंट नहीं है। फिर आता है 3d। 3d के अंदर n-l-1, 3 -d के लिए l वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे भी कोई नोड नहीं है। आगे आया 4f। 4f मीन्स n-l-1, जैसे कि 4 -l वैल्यू फॉर f सबशेल इज 3 and you are getting 0 again. So which does not have any radial node? हमारा आंसर है all of them। 1s में, 2p में, 3d, 4f किसी के अंदर भी रेडियल नोड नहीं है। Our answer becomes option D, right? So that is all about the lecture. We have learnt about the dual nature mainly.
ड्यूल नेचर को वेरीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। डेविसन एंड जर्मर ने प्रूव किया कि वेव करेक्टर भी है। वेव करेक्टर के लिए उन्होंने शो किया सिंटिलेशंस कैसे आती हैं। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पार्टिकल करेक्टर दिखता है। एंड ऑन अ निकल क्रिस्टल ऑल्सो if a stream of electron is made to fall, then you will get diffraction pattern just like X-rays. तो वेव करेक्टर भी दिख रहा है, कहीं पे पार्टिकल करेक्टर दिख रहा है, जैसे कि मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज द प्रूफ फॉर पार्टिकल करेक्टर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दे आर प्रूविंग द पार्टिकल नेचर। एज अ रिजल्ट हमें क्लियर होता है कि फिक्स्ड पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं पे भी रिवॉल्व करता है। तो उससे कॉन्सेप्ट ऑफ सबशेल, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल आपने देखा, और फिर ऑर्बिटल्स के शेप, ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस देना है उसके लिए क्वांटम नंबर्स में हम साइज एंड शेप, एंगुलर मोमेंटम सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑल द क्वांटम नंबर्स आर गिविंग द कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड आउट ऑफ द 4 क्वांटम नंबर्स 3 वर डिराइव फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड लास्ट का जो स्पिन क्वांटम नंबर है दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस सेपरेटली टू डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। होप you are enjoying the benefits of our lectures. Make sure you subscribe to the channel. It will help you to get more videos for better revision. Thank you and bye bye.